it's being seen and then heard as well that corporates, the laws are there for sure, and the laws are stringent as well for sure, but the corporates are neglecting the laws, right? They understand that if they don't fulfill the rules and the regulations, then there will be some kind of penalty, and the concern or the officer in default may also have to go to the imprisonment, etc. But still they are not very much bothered. So to make sure that the innocent investors, whosoever has invested the money in the company, and does not just relate to the shareholders, but just anybody who has invested the money in the company, be it depositors or just anybody, if anything is wrong, if anything kind of a wrong actually happens to those people, then those companies should actually get the corrective measures done as soon as possible. But when it was being seen that the company was ignoring each and everything, so the government has introduced some changes in the way the SEBI will impose the fines and the penalties. And then in the previous thing, it was being said that even after the due date has passed, still the corporates will have time to pay the extra amount and get their case solved or resolved. But now with this amendment that we'll be studying right now, all these provisions have been omitted. So the corporates will be given a specific time, and they need to make sure that they abide and comply with that time. It's not about paying extra money, and it's not about bribing the officials, but it's just like if some number of days are being fixed for a particular process, then the corporate has to abide by those days limit. They cannot just keep on exaggerating and stretching those limits till the extent possible. So this is not allowed now as per this amendment. So चलिए अब बात करनी स्टार्ट करते हैं. सो मैं इंग्लिश से हिंदी में आ गया हूँ, तो बात करनी स्टार्ट करते हैं. सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेटलमेंट प्रोसीडिंग अमेंडमेंट्स रेगुलेशन 2022. तो ये जो अमेंडमेंट है ये आया है 14 जनवरी 2022 को. इसी साल इसको लाया गया है. एंड यहाँ पे सिर्फ इतनी सी बात कही गई है कि जो ये अमेंडमेंट है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से, ये सेटलमेंट प्रोसीडिंग को लेके है. वो आप खुद ही समझते हैं कि जब वर्ड हम सेटलमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, सो सेटलमेंट उन्हीं चीज़ों का हो सकता है जिनके ऊपर कोई डिस्प्यूट हुआ हो. मतलब सेटलमेंट का जो वर्ड है वो आएगा ही तभी जब कोई डिस्प्यूट. अगर सब कुछ सही चल रहा है तो फिर क्या सेटल करना, सब कुछ ऑलरेडी सेटल्ड ही है. बट सेटलमेंट की बात तब आती है जब एक पार्टी कुछ और सोच रही है, शायद बाकी पार्टीज कुछ और सोच रही हैं. मोर देन लाइकली यहाँ पे डिस्प्यूट अराइज हुआ है, तो उसको लेके यहाँ पे एक बदलाव किया गया है. पहले जो प्रोविजन था वो ये है, जिसको मैंने कट आउट कर दिया है, तो ये अब इनवैलिड है. बट अगर मैं डायरेक्टली आपको ये बताता कि नया प्रोविजन क्या है, तो आप शायद ये नहीं समझ पाते कि पहले क्या बात थी. तो पहले फर्स्ट मैंने वो बात लिखी है जो कि पहले हुआ करती थी, और इम्पैक्ट के तौर पे मैंने वो लिखा है जो अब इस अमेंडमेंट से होने जा रहा है, लागू हो गया है, इम्प्लीमेंट हो गया है. तो पहले कैसा था कि नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन रेगुलेशन 4 द बोर्ड मे कंसिडर, यानी सेबी के बारे में बात करते हैं, may consider the application if satisfied that there was sufficient cause for not filing it within the specified time, provided where the application is filed after 60 calendar days from the expiry of the period specified, the settlement amount shall be increased by 25%. एक और लाइन है, पढ़ के समझाऊंगा. Provided further that no such delayed application shall be considered if the application is filed after 120 calendar days from the expiry of the period. तो जैसे कि मैंने कहा सेटलमेंट का जो वर्ड है दैट मीन्स कोई डिस्प्यूट है और उसको लेके आप चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, रिजॉल्व करना चाहते हैं. तो पहले पॉइंट में ये कहा गया है कि अगर सेबी जो है उसको ऐसा लगता है कि मान लीजिए सेबी ने किसी कंपनी को बोला कि भाई 30 जून तक आप इसको रिजॉल्व कर लीजिए, जो भी फाइन पेनल्टी उसको भर के इसको खत्म करिए, अदरवाइज सेबी जो है वो कंपनी के ऊपर लीगल एक्शन लेना स्टार्ट करेगा, लीगल एक्शन की प्रोसीडिंग स्टार्ट करेगा. नाउ कंपनी जो है वो वॉट एवर रीजन 30 जून या जो भी तारीख कंपनी की तरफ से फिक्स करी गई है, 30 जून में अपने मन से एज्यूम करके बोल रहा हूँ, तो जो भी तारीख कंपनी की तरफ से सेबी की तरफ से जो तारीख फिक्स करी गई है, अगर वो 30 जून है और कंपनी ने उस तारीख तक पैसा नहीं जमा किया, पेनल्टी वगैरह जो भी है वो नहीं जमा करी, तो कहते थे कि
कंपनी के पास फिर भी 60 दिनों का समय होगा, मतलब 30 जून से लेके 60 डेज और होंगे, कंपनी जो है वो अपनी बात सामने रख सकती है। पर अगर कंपनी को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो पहले जितनी पेनल्टी देनी पड़ रही थी उससे 25% ज्यादा अब देनी पड़ेगी, और कंपनी की बात जो है वो सेबी सुन लेगा। मानेगा या नहीं मानेगा वो एक बात की बात है। तो ऐसे मान लो कि पहले कंपनी को बोला था कि 10 लाख रुपए आप 30 जून तक जमा करिए, 10 lakh rupees the company has to deposit till 30th June 2022। 30th June 2022 is just a fictitious figure, मैं अपने मन से बोल रहा हूँ, आप चाहें तो कोई भी फिगर कोई भी डेट दे सकते हैं, बट क्योंकि मुझे यहाँ पे एग्जाम्पल देना है तो इसीलिए मैं कुछ एक एजम्पशंस के तौर पे बातें कर रहा हूँ। तो सेबी ने कहा कि जो गलती हुई है कंपनी से उसकी जो सजा बनती है वो मान लीजिए 10 लाख रुपए है, और ये 30 जून 2022 तक कंपनी को जमा करनी है। अगर कंपनी नहीं जमा करती तो आगे की जो एक्शन है, लीगल प्रोसीडिंग है, वो कंपनी पे लिए जाएंगे। तो कंपनी ने 30 जून तक कोई पैसा जमा नहीं किया, बट कंपनी जो है वो 30 जून जब निकल गई तो उसको रियलाइज हुआ कि हमें बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि फिर अननेसेसरी और ज्यादा ही मैटर कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो अब हम ये कह रहे हैं कि पहले ऐसा होता था, अब नहीं है ये, बट पहले ऐसा होता था कि अगर डेट जो है वो जो सेबी की तरफ से बताई गई है वो डेट पास भी हो गई है, निकल गई है 30 जून के, जून पूरा महीना अब निकल गया, अब जुलाई चल रहा है, 10 जुलाई आ गई, तो जून तो पहले था, जुलाई आ गई अभी। पर अगर कंपनी को लगता है कि हाँ एक बार उसको अपनी बात रखनी चाहिए, भले देरी हो गई है बट कंपनी अपनी बात अगर रखना चाहे तो रख सकती है। और ये यहाँ पे कहा गया है कि पहले अगर 10 लाख रुपए की पेनल्टी थी, अब कंपनी को 25% एक्स्ट्रा 12.5 लाख रुपए, 10 लाख का 25% आई थिंक 2.5 लाख रुपीज होगा तो रादर देन 10 लाख रुपीज में जो काम बन रहा था, कंपनी को थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे और कंपनी की बात जो है वो सुनी जाएगी, और अगर ठीक लगेगा तो सेबी वो बात मान लेगा। 60 डेज के ऊपर जो है वो डेफिनेटली आप अपनी बात जो है सेबी के सामने रख सकते हैं और सेबी वो बात सुन लेगा। पर अगर जिस दिन सेबी ने कहा था 30 जून, उसको लेके उस तारीख से अब 4 महीने आगे आप निकल चुके हैं, 120 दिन 120 डेज, मतलब आप 4 मंथ्स अप्रोक्सीमेटली आगे निकल चुके हैं। यानी जून के बाद अगर देखें जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मान लीजिए हर महीने में 30 डेज ही हैं फॉर एग्जांपल, तो आप सितंबर तक आ गए हैं, क्योंकि जून की बात करें, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 30 अक्टूबर हो गई है और अभी तक कंपनी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तो अब कहते हैं कि भले कंपनी एक्स्ट्रा फीस भी देगी ना 25% की जगह 50% भी, तब भी कंपनी की बात हम नहीं सुनेंगे। ये सेबी का कहना था पहले के प्रोविजंस में, पर अब जो अमेंडमेंट्स हम पढ़ रहे हैं उन्होंने कहा कि नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई 25% ज्यादा देके या कोई डेज की लिमिट देके ऐसा कुछ नहीं है। जिस दिन तक सेबी ने कहा है इस मैटर के ऊपर आपको इतनी फाइन पेनल्टी है, ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करने हैं, अगर आपने वो सेबी की बात नहीं मानी तो वहीं पे मैटर खत्म हो गया। अब एक्सटेंडेड टाइम की बात ही नहीं है, ना एक्सटेंडेड टाइम की बात है, ना एक्स्ट्रा फीस देने की बात है, मैटर ऑलरेडी क्लोज हो जाएगा। जो लास्ट डेट बताई है वो लास्ट है फॉर ऑल पर्पस। एक्स्ट्रा पैसे देने से, एक्स्ट्रा फाइन देने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब वो प्रोविजन डिलीट कर दिए गए हैं। सो इस अमेंडमेंट में हमें समझ में आया कि रादर देन हम पहले की तरह वेट करें और एक्स्ट्रा फीस देके अपनी बात कहने की कोशिश करें, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। जो डेट सेबी की तरफ से तय करी गई है उसी पे आपको अपनी बात कहनी है। अगर आप उस समय अपनी बात नहीं कह पाए, भूल गए, याद नहीं रहा, नहीं कह पाए किसी वजह से, तो आप अपनी अपॉर्चुनिटी जो है वो खो देंगे। यू विल नॉट गेट एनी सेकेंड चांस, ये यहाँ पे कहा गया है। बात करते हैं आगे अमेंडमेंट टू रेगुलेशन 6। तो रेगुलेशन 6 है क्या, और ये जो रेगुलेशन हम पढ़ रहे हैं, चाहे रेगुलेशन 4 है चाहे रेगुलेशन अब 6 है, ये किस चीज की रेगुलेशंस हैं? दीज ऑल आर रिलेटेड टू सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेटलमेंट प्रोसीडिंग अमेंडमेंट रेगुलेशन 2022। तो इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो रेगुलेशन 6 जो है उनका ये कहना है, the application may also be rejected if the applicant does not submit or delay the submission of the revised settlement term or any other information as called upon by SEBI. The words revised settlement term has been specifically added to the amendment. तो पहले जो रेगुलेशन 6 था इस अमेंडमेंट के आने से पहले, और अब जो हो गया है इस अमेंडमेंट के आने के बाद, सिर्फ इतना सा फर्क है कि उसके अंदर एक वर्ड जोड़ लिया गया, रिवाइज सेटलमेंट टर्म। रिवाइज सेटलमेंट टर्म का अगर एक बेसिक ट्रांसलेशन हम लोग लें तो और कुछ नहीं है, मतलब रिवाइज सेटलमेंट टर्म ये है कि सेबी की तरफ से एक सेटलमेंट टर्म आया कि आप जो इतनी पेनल्टी है वो आप ऐसे ऐसे पे करिए। तो कंपनी ने रिक्वेस्ट करेगी, रादर देन जो सेबी कह रहा है, कंपनी का मानना है कि वो नहीं कंपनी फुलफिल कर पाएगी क्योंकि कंपनी के पास उतना पैसा नहीं है, उतनी रिसोर्स नहीं है, जो भी और बात है, तो कंपनी अपना एक प्लान सबमिट करती है, उसको आप कहते हैं रिवाइज सेटलमेंट टर्म। रिवाइज मतलब उसके अंदर कुछ बदलाव है, कुछ चेंजेस हैं,
जो वो ओरिजिनली था वो अब नहीं है। तो यहाँ पे एक आ गया है कि जब सेबी ने आपसे कहा था कि ठीक है आपको हम 10 दिन का मौका दे रहे हैं, विल गिव यू द टाइम लिमिट ऑफ 10 डेज, और अगर आप सेबी के प्लान से या जो सेटलमेंट टर्म है उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो कंपनी अपना एक तरीके से सेटलमेंट टर्म जो है वो सेबी को जमा करे। अब अगर 10 दिन के अंदर कंपनी ने वो प्लान या जो टर्म्स है वो नहीं सेबी के पास दिए, नहीं सेबी को लिख के भेजे, तो बात खत्म हो जाएगी, फिर कंपनी अपना जो राइट है उसको लूज कर देगी। तो आई थिंक ये जो लॉ है थोड़ा प्रोग्रेसिव है, ये सारे के सारे अमेंडमेंट, जहां पे शायद हम इनडायरेक्टली ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि पैसे देके अब आप सब कुछ नहीं कर सकते। ये इसलिए भी हुआ है क्योंकि आप देखिए जब मैंने इस चैप्टर की शुरुआत करी तो उस समय मैंने एक बैनर या एक इमेज के तौर पे यहाँ पे लगा रखा था। मोस्ट लाइकली ये कोविड का समय होगा जहाँ पे आप सभी लोगों के फेस पे मास्क देख रहे हैं। तो इनकी क्या हिंदी में लिखा गया है कि एक ही मांग एक ही नारा, सहारा इंडिया भुगतान करो हमारा। इन इंग्लिश इट मीन्स कि भाई दीज पीपल, ऑल द पीपल, सिर्फ ये 4 लोग नहीं जितने भी इनके साथ हैं, दे ऑल हैव जस्ट वन डिमांड and they have all just one slogan that they want Sahara India, who has taken the money from these innocent investors, so Sahara India should return the money। ये इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, इसलिए ये चीज यहाँ पे लगाई है क्योंकि कंपनी बहुत लाइटली लेती हैं लॉज को। उनको लगता है कि ठीक है अगर हमने नहीं फुलफिल किया क्या होगा, फाइन दे देंगे, पेनल्टी दे देंगे, दोनों दे देंगे, जेल भी जाना होगा तो कंपाउंडिंग वगैरह कुछ बन जाएगी बात, तो ठीक है जो होगा देखा जाएगा। तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए ये स्पेसिफिकली कहा गया है कि भाई कानून बना है फॉलो करने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं। तो जो फॉलो करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए उसको आप फॉलो करें, उसके अंदर रह के इसके अंदर काम करें और ये सब चीजों का ख्याल रखें। रेगुलेशन 9 के बारे में बात करते हुए कहा गया है कि अगर कोई भी ऐसी कंपनी है, कोई भी ऐसा इंटरमीडियरी है जो सेबी को कहता है कि मैं रिवाइज सेटलमेंट टर्म्स दूंगा, या जो सेबी के ऑर्डर्स को नहीं मानता है, तो उस एंटिटी को, उस इंडिविजुअल को या एंटिटी कॉर्पोरेट जो भी है वो, उसको ऑब्वियसली बार्ड कर दिया जाएगा। वो सिक्योरिटी मार्केट में ना कुछ खरीद पाएगा, ना कुछ बेच पाएगा, ना सिक्योरिटी मार्केट में किसी तरीके से डील कर पाएगा। तो आप देखिए कि यहाँ पे जो एक कहीं ना कहीं हम रिस्ट्रिक्शंस है उसको बढ़ाते जा रहे हैं, और बढ़ाने के साथ साथ आई थिंक हमने ये भी कह दिया कि अब कोई भी ऐसा बंदा जो सेबी की बात नहीं मान रहा, रेगुलेटर की बात नहीं मान रहा, तो और किसी की बात क्या मानेगा, तो उस बंदे को सिक्योरिटी मार्केट में आने से ही मना कर दिया, उसके साथ कोई डीलिंग नहीं करेगी, ये मेक श्योर हम यहाँ पे करने वाले हैं। ये नया क्लॉज है जो कि पहले नहीं था, तो और ज्यादा चीजों को स्ट्रिक्ट बनाने की कोशिश करी जा रही है जिससे कि टेकन फॉर ग्रांटेड वाला जो एटीट्यूड है वो ना हो। फिर कहते हैं रेगुलेशन 13 के अंदर जो बदलाव है, कहते हैं amended by empowering internal committee to permit the applicant to submit revised settlement terms within a period not exceeding 15 working days from the date of internal committee meeting in place of 10 days which was provided earlier। तो जैसा मैं आपसे कह रहा था कि मान लीजिए एक तरफ सेबी है और दूसरी तरफ एक कंपनी है जिसका नाम ABC लिमिटेड है, तो सेबी ने अपना टर्म्स दिया कि इस तरीके से आप पे हमने फाइन लगाया है और आपको ऐसे ऐसे पेमेंट करना है। तो कंपनी, अगर कंपनी को लगता है कि भाई वो सेबी की बात नहीं मान पाएगी, क्योंकि कंपनी कहते हैं हाँ जी हम कर देंगे और फिर ड्यू डेट पे डिफॉल्ट कर दे, वो तो ठीक नहीं है। तो बेटर है कि कंपनी पहले ही बता दे कि हम ये नहीं कर सकते। तो अगर कंपनी ऐसा कहती है तो अपना रिवाइज प्लान बता दे कि ठीक है जो सेबी की बात है अगर आप वो नहीं मान पा रहे हैं क्योंकि फाइनेंशियल डिफिकल्टी है, जो और कोई रीजन है, तो कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी वो बता दे। अगर सेबी को लगेगा कि हाँ चलो ये भी ठीक है, ये भी बात सही है, तो सेबी उसको अप्रूव कर देगा, सेबी की इंटरनल कमेटी अप्रूव कर देगी, नहीं तो फिर ठीक है लीगल एक्शन कंपनी पे होना तय है। तो ये जो रिवाइज सेटलमेंट टर्म था, पहले इसको एंटिटी जो थी इसको बनाने के लिए उसको, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है 10 दिन मिलते थे पहले, बट अब इस अमेंडमेंट के बाद वो 15 डेज देने की बात कर रहे हैं। यानी डेज अभी भी मिलेगा, टाइम अभी भी मिलेगा, बट 5 दिन और ज्यादा मिलेंगे जिससे कि सही तरीके से आप चीजों को ड्राफ्ट कर सकें और बना सकें। फर्दर यहाँ पे ये भी बात कही गई है कि जो रेगुलेशन 15 है, provides a provision related to the actions on the recommendation of high powered advisory committee। तो सेक्शन या रेगुलेशन 15 जो है वो हाई पावर्ड एडवाइजरी कमेटी के ऊपर है, और वो क्या कहता है आइए देख लेते हैं। So regulation 15 sub regulation 2 clause A has been amended by omitting the provision for allowing the extension of time for remitting the settlement amount which was as under। I think ये कुछ ऐसी ही बात कह रहा है जो ऊपर हम पढ़ के आए हैं रेगुलेशन 4 के अंदर, कि जो आप पहले एक्सटेंशन ऑफ टाइम ले लेते थे कि भाई पैसे एक्स्ट्रा दे दिए, फाइन एक्स्ट्रा दे दिया और थोड़ा सा समय बढ़ा दो,
तो वो चीज अब कहते हैं खत्म कर दी गई है, वो ओमिट कर दिया गया है, वो प्रोविजन ही हटा दिया गया है। और वो प्रोविजन था क्या, कहते हैं कि जो होल टाइम एक्चुअली मेंबर्स थे या जो आप काइंड ऑफ रिवाइज सेटलमेंट टर्म सबमिट करते थे, तो कहते हैं कि उसके लिए आपको एक्स्ट्रा समय भी दिया जाता था। पहले हमने बात करी 10 डेज का समय था, 15 कर दिया गया, बट 10 डेज का इनिशियल समय था, उसको बढ़ाया भी जा सकता था। तो अब वो कहते हैं कि जो पहले की बात थी कि इनिशियली हम आपको 10 दिन का समय देंगे, फिर उसको और बढ़ा सकते हैं, उसको और बढ़ा सकते हैं, तो वो अब खत्म हो गया। कुल मिला के 15 दिन का ही समय है। अब इसके अंदर आप चाहे एक्सटेंशन मानिए चाहे कुछ भी मानिए, बट 15 डेज के अबव नहीं होगा। पहले 10 दिन की इनिशियल बात थी कि 10 दिन का समय है, बट आप 10वें दिन जाते थे और कहते थे सेबी को कि सर मैं नहीं कर पाया, तो सेबी आपको एक्सटेंशन दे देता था। तो अब वो एक्सटेंशन की बात जो है वो यहाँ पे खत्म हो गई है, वो प्रोविजन अब रहा ही नहीं है। सभी के लिए फ्लैट एक ही टाइम ड्यूरेशन सेट करी गई है, वो है 15 डेज। उसी के अंदर आपको ये सारा का सारा काम जो है वो करना होगा, ये चीज यहाँ पे कही गई है। उसके बाद जो भी पैसे वगैरह जमा करने हैं, फाइन है, पेनल्टी है, तो पहले सिर्फ डायरेक्ट क्रेडिट से कर सकते थे या NEFT, RTGS, IMPS से कर सकते थे, बट अब कहते हैं कि एक पेमेंट गेटवे बनाया गया इस पर्पस के लिए, जहां पे जाके आप पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। पेमेंट गेटवे क्या है, जैसे आप ICSI की अपनी अभी एग्जामिनेशन फीस दे रहे हैं, हम श्योर बहुत जल्दी मेंबरशिप फीस भी आपको देनी होगी, क्योंकि आप मेंबर बन जाएंगे और मुझे पूरा उस चीज पे विश्वास है। तो जब अपनी मेंबरशिप फीस देंगे तो ऑब्वियसली आप पेमेंट करेंगे किसी क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, इंटरनेट बैंकिंग से, तो पेमेंट गेटवे से ये पेमेंट प्रोसेस करी जाएगी। तो ऐसे ही उनका ये कहना है कि जो RTGS और इन सब से होता था, अब पेमेंट गेटवे के जरिए ये काम किया जाएगा। जो लिंक्स वगैरह आप एक दूसरे को भेजते हैं और लिंक के थ्रू पेमेंट होती है, वैसे ही मतलब कहने का यही है। तो आई थिंक यही चीज यहाँ पे